misnomer which is very common is once you get to a private college, you probably cannot do beyond it. तुमने भी सुना होगा like तुम private college में enter कर चुके हो तो you are somewhere inferior to somebody who is reading in NIT or maybe IIT, right? सुना होगा, right? Actually, it's not 100% correct. Where they are ahead, where you are ahead, I'll tell you. Because once you get to an NIT or maybe an IIT, there is a course which is defined by the university, right? And we personally feel that the lecturers are super, they will be given education like anything. This is an outlook which I was having when I did my BTech. Finally, I got the chance, got an opportunity to study in Indian Institute of Science in Bangalore for my MTech. That time, what I realized is it's not the lecturer or it's not the college who made you. The reality is this is yourself who made your own outlook and who make your own identity. मतलब ये कॉलेज नहीं बनाता आपको, कोई भी कॉलेज किसी को नहीं बना सकता, चाहे वो आईआईटी है, चाहे वो एनआईटी है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है, या for name sake it's a distance education. Suppose because there are people who have done their BTech from a distance education. कॉलेज किसी को नहीं बना सकता. You have to clear your mind on that. कौन बनाएगा वो? आप बनाओगे. आप ही खुद को बनाते हो. बस जो पढ़ाया जाता है उसको तैयार करो. Just it's not that today exam is over, the subject is over. No, it is not. There are some core subjects in any discipline which are most important to be covered from GATE perspective or even from the perspective of a PEC. Suppose if I take an example from mechanical, because anyway I have a very little exposure to the other branches, I'll try to give an example from mechanical engineering. Right, there may be some guys sitting over here from mechanical. If I would like to ask you, please raise your hand those who are from mechanical background. Okay. Okay. There are only a couple of them, but I was expecting like there will be many. It's okay, no problem. It's like mechanical engineering कुछ four subjects होते हैं. There is strength of material हो गया, fuel machine हो गया, and manufacturing हो गया, and thermodynamics हो गया, gas dynamics हो गया, and about that, what else I'm missing? Okay, machine, sorry, strength of material हो गया, exactly this much. तो कहने का मतलब ये हर डोमेन में 6 या 7 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पीएसयू में या गेट में पूछे जाते हैं. If you take a corresponding example in other branches, similar kind of 5 or 6 subjects will be there, which will be continuously or maybe dominantly asked in PSUs or maybe GATE examination. Why I'm calling GATE? Because GATE is a beautiful exam designed for an engineer, basically, or for any other students who is appearing for not for the core discipline branches, but for others. Like computer science is not a core discipline branch. Core discipline branch means mechanical engineering, electrical engineering, or civil engineering. These three are core branches for engineering. Other branches have been derived from them, taking agglomeration from one or another. These are the mother branches for engineering. So it's not that the mother branch will only be entertained by GATE for entertaining for selection for MTech, but even for PSUs too. Other than that, computers also. Suppose if you got to have a good score in computer, then you can opt for an MTech in ISC, and particularly ISC is known for a very heavy active package for people those who are getting qualified as an MTech from them. Now, what I want to clarify here is college नहीं बनाता है, किसी को नहीं बनाता कॉलेज. आप अपने करियर को खुद बनाते हो. जो आप पढ़ते हो एग्जाम के बाद बुक को थ्रो मत करो. एग्जाम खत्म होने के बाद भी 1 हफ्ता दो, रिवाइज करो. किसको रिवाइज करना है? उन कोर सब्जेक्ट्स को जो रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सिर्फ इतना अगर आप करते हो ना, उसके बाद 7 दिन आप दो, 7 दिन उसको रिवीजन पे लगाते हो, वो 7 दिन का रिवीजन आपको बाकी लोगों से कम 20% लोगों से आगे ले आएगा. जब आप सेकेंड टाइम उसको उठाओगे ना, तो आपके पास उसमें से कुछ चीजें पहले से मेमोरी में होंगी और वो आपको हेल्प करेगी फर्दर टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स, बिकॉज एवरीथिंग इज एसोसिएटेड. वन सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंस में एसोसिएट करता ही है. ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट डिजाइन होते हैं. मशीन डिजाइन की बात करते हैं. अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम मैकेनिकल. प्लीज पार्डन मी इफ यू आर नॉट फ्रॉम द डोमेन, बिकॉज यू कैन पिक अप सिमिलर एग्जांपल फ्रॉम देयर फील्ड. ट्राई टू बी try to take a crux of the story rather going for word by word to the things. So if मैं pick करता हूँ machine drawing को, machine drawing and design, and for that sake manufacturing also, all we are connected fields.
और सब्जेक्ट के नाम पे 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग डोमेन में, जब हम एग्जाम देते हैं तो तीनों अलग अलग एग्जाम। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि चीजें कनेक्टेड है। आप जब उनको कनेक्टेड तरीके से पढ़ना शुरू करते हो, ऐसा तभी हो पाता है जब आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के चीजों को पढ़ते हो। आप गेट का सिलेबस सामने रखो और उसके हिसाब से देखो कि आपके कोर्स सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा फर्दर उसको और बेहतर करने में। उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है वो आती है कि एक्सपोजर टू द मार्केट। देखो इसका एक बहुत बढ़िया और बहुत फूल प्रूफ तरीका है, एक लिंक्डइन करके सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जहां पर प्रोफेशनल्स अपना रिज्यूम बनाते हैं, मैं बोलूं प्रोफाइल बनाते हैं, और वो प्रोफाइल आप यूज करते हो अपने कोर्स कंडक्ट को या अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए। लिंक्डइन अकेला ऐसा प्रोफाइल है जहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती है। आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ और उसको ट्रेन करो कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड डेटा आपको दे। कैसे होगा? जब भी आप लिंक्डइन पे कुछ सर्च करोगे, आप सर्च करो अपने ही डोमेन से रिलेटेड। जब आप ऐसा करोगे तो वो आपको मतलब इनपुट्स देने लगेगा। जैसे कि आपका फेसबुक आपने देखा होगा, इफ यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी, ऑलवेज यू लाइक टू हैव सम फ्यू पेजेस ऑफ दैट सेलिब्रिटी कनेक्टिंग एंड कमिंग टू योर रेकमेंडेड पेजेस। तो इसी तरह लिंक्डइन भी आपको रेकमेंडेड पेजेस देने लगेगा। उसके बावजूद अपनी पर्टिकुलर डोमेन में, सपोज इफ आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, assume I'm not from mechanical, I am from computer background, I'll try to search the people those who have been what do you say, who is acting like a CEO in India and from computer background. So what I will see, I will see their opportunity column, their certification column. In LinkedIn, what happens is, suppose if I am getting a certification, I will write that I got to have a certification in ultrasonic testing, I got to have a certification in X-ray. So if you come to my profile, you can see what are my achievements or maybe what are my certifications which I have achieved during the course of my career. So जैसे अगर आप 10 या 12 लोगों का सर्टिफिकेशन देखते हो, उसमें कॉमन चीजें क्या है, उससे आपको अंदाजा आएगा कि कौन सी चीजें हैं जिसका सर्टिफिकेशन आपको आपकी डोमेन के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ 2 चीजें हुई, एक आपने उसको ट्यून किया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिससे कि जब आप उसको स्क्रॉल करोगे, जब अपना टाइम आप लिंक्डइन पे स्पेंड करोगे, तो वो वही पेजेस दिखाएगा जो आपसे रेलेवेंट होगी। सेकंड, आपने नॉलेज गेन किया कि आपकी डोमेन में जो लोग अच्छा कर पा रहे हैं, जो लोग कम से कम एक सीईओ की रैंक तक हैं या जो एक अच्छी सैलरी उठा पा रहे हैं, तो उनके पास किस कोर्सेज का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। सो इनडायरेक्टली आपको पता लगा कि मार्केट में किन चीजों की डिमांड है आजकल। अगर आप 10 लोगों का प्रोफाइल भी स्टडी करते हो तो उसमें 4 या 5 कॉमन टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर पिक कर रहे हो, somebody is working on a data, definitely Python will be a part of that. Machine learning, maybe TensorFlow library will be a part of that. Or maybe what you say, scikit learning will be a part of that. तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखने के बाद आपको 4 इनपुट्स मिल रहे हैं कि आपको ये कोर्सेज करने हैं, वो कोर्सेज अब सवाल आता है वो कोर्सेज आप करोगे कहाँ से। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग फ्री लेक्चर सीरीज देते हैं। क्या करो, आप पहले कोई भी लेक्चर सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, 90% चांसेस है कि आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। डोंट गो बाय दैट, जस्ट फिनिश इट ऑफ। अपने नोट्स बनाओ। जब आप सेकंड टाइम उसको रिपीट करोगे ना, जब आप सेकंड टाइम उसको देखना शुरू करोगे, जब उसको फॉलो करोगे, तब आपको उसमें से जितना पहले में आ रहा होगा ना, उससे कम से कम दुगना आएगा। 40% से 50% तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करो, पे फॉर इट, इट्स वेरी मिनिमल, मे बी 2000-3000 रुपीज दे विल चार्ज, गो फॉर इट एंड गो फॉर समबडी हु इज गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट। Now what will happen? Once you get a certification, you will upload the certification link. आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा। सेकंड, आपके पास एक सर्टिफिकेशन आएगा आपके कोर्स से रिलेटेड, और वो सर्टिफिकेशन उसका होगा जो कि ऑलरेडी मार्केट में डिमांड में है। Try to train your profile like a corporate, requirement. Don't train it because somebody else said that. I shall not do a course because Ramesh said, or maybe Manjit said. Why should I do it? क्योंकि Ramesh and Manjit are just like me. They don't know what is the demand of the market right now. I need to train my career according to the demand of the market. आप ट्रेन करो अपने करियर को, डिमांड है जो मार्केट में उसके हिसाब से। उसके बाद आप मार्केट में कदम जब रखोगे ना, आपके पास वो प्रोफाइल होगा दिखाने के लिए। जब आप अपना रिज्यूम बनाओगे उसमें वो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे। एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। सपोज आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स. This is a narrative which is not going to be accepted at all in industry as of now. I need to know small things at least. Either if I want to go in analysis, I shall know ANSYS. If I want to go in a data science domain, I shall know Python. If I want to go in design, I shall know AutoCAD and SolidWorks.
Otherwise, I cannot survive. Honestly, I cannot survive. If I want to go in a thermal analysis company, in a company who is working in maybe gas turbine or something, I shall know some software for thermal analysis. If I don't know that, I cannot expect myself to be paid at least to my expectation or maybe my caliber. Having good knowledge of theory is one. Knowing it to the extent of the requirement of the market is another. So how I will proceed? Again, the same thing as I told you. I try to search people from mechanical background have been paid more than 1 crore rupees in India. I'll get some 10 or 15 options in Google or maybe in LinkedIn itself. Again, I will search Google entries to LinkedIn. I will check their profile, what are kind of courses and what are kind of certification they are having. I will shortlist it. I'll make a list of all 10 people. What is common in all 10? I maintain that as my objective. अगले 4 साल में, अगले 2 साल में, अगले 1 साल में मैं वो करने वाला हूँ. Start करूँगा मैं free से. I'll start from YouTube, start watching video. Even if I don't understand anything, does not matter. Go for 10%. Go for 20%. Go for 30%, right? Again, if you repeat, go for 40%. Why I give? Because I saw all the energy. Somebody was not even thinking, so I wait. Okay, just don't get what do you say, perturbed by my action. Just come with the flow. Now the thing is, once I will go for a course, I get a certification. Now I am industry ready. Now further what I can do? What I can do is I can do a networking. When I am searching all those things, I will ask them to get connected in LinkedIn. I will send a request to them to get connected. All 10 people I will send a request. Now what will happen? Whatever they will post in their career or maybe in their life in LinkedIn, I will come to know. Because I got to, at least if I am sending a request to connect, at least 4 or 5 of them will respond, right? 4 or 5 of them, whatever content they are going to publish on LinkedIn, that will be available to me to check. Out of that 4 and 5 people, whatever they are publishing, 1 or 2 will be of the domain which is actually known to me. Because by that time, as it progresses, I will be having certification of 1 or 2 things. So definitely it is going to fall in my domain. What I will do, I will try to do comments on their post. Once I am commenting, they will come to read about it. Once they are reading about it, it will build your image. Image in terms of LinkedIn. What happens is, once you comment on LinkedIn and it is relevant, LinkedIn will put your comment on the top. It will put your post on the top, just like Facebook only. What happens is, you are training your own social media in favor of your objective. You are spending time on LinkedIn, that is one thing. But at least you are training your own profile as per the need of the market. At the same time, you are going to get opportunities more. Now, what will happen in LinkedIn? You have an option to select whether you are somebody who is offering job or you are somebody who want to get a job. Select a column from want to get a job or not. Second thing, what you do is, side by side, whenever exams come, try to perform better and get good grades. If you are not getting, it's fine, doesn't matter. But at least revise the subject. Make yourself knowledgeable. Don't go by the numbers alone. There are people available in Tamil Nadu who are having a degree of 97, 98%. If you are living in a cocoon, God only can help. Nobody else can. This I came to know when I reached in ISRO. I saw my colleague's degree with some 94, 95%. I was surprised. I got 70 on the man. How come you come to have 95% in that degree? It's like, it's okay. That degree has not given him anything but a screen. There is screening in many industries. They will screen only above 70%. It's fine. I know we are going to lose some options out of that. It's fine, but still there is still scope available where you can perform better. Even if you have been called by 4 options, fine, no problem. Perform better. Go with a background of your engineering in the core subject on your tips. Second, go with the certification. I am telling you, maybe 1, 2, or 3 people can reject you. It's not that it is going to happen that you are going to face rejection more than that. Not going to happen. How I am telling? I read in the same college. Got to select not only 1, 3. DRDO I qualified, NTPC I qualified, ISRO I qualified. And believe me, I am not brilliant. I am not. But one thing is, I am good at what I am good at. So if you call me for my domain, whatever I tell, I am good in that. How I come to know? Because I compared myself to people working around me. And secondly, when you do something and you have an interest in that, then definitely, whatever is associated with that, you will be learning it fast. As compared to a person who is not interested in working in a particular field, but still he has been pushed for some reason to stay in that.
तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका इंटरेस्ट आता है किसी चीज में, कोशिश करो कि आपके इंटरेस्ट को अलाइन करो अपने जॉब के साथ। अगर ऐसा हुआ तो माशाल्लाह फिर तो भगवान भी आपको मदद करेगा। मतलब इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे फील्ड में वर्किंग हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा फॉर सम रीजन, यू आर गेटिंग गुड सैलरी इन सम अदर ब्रांच एंड मे बी इन सम अदर डोमेन, but still you are managing the base, even then it is fine. Interest will build up with time. Sometimes you don't have an understanding of the subject. Once you start working in that, you come to know that okay, there is some interesting area where you can explore. बहुत बार ऐसा होगा ना। उसके अलावा बहुत जो चैलेंजिंग पार्ट होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत मतलब टाइम हो गया मेरे को पढ़ते हुए या ट्राई करते हुए, चीज़ें क्रैक नहीं हो रही और कैसे मैं आगे बढ़ूँ करियर में। ये चीज़ें मतलब ये कुछ ऐसे आंसर या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब एक स्टूडेंट के पास नहीं होता है। बट डोंट वरी, ट्राई टू सर्च इट वन बाय वन, ब्रेक इट इनटू पीसेस। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ये है और मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें पता लगेगा। और जब तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हो तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट के होंगे। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट इज यू नो more number of people sitting for a particular branch. Can somebody give me an assessment? Like majority of the people are from which branch and which kind of discipline? Computer science. Okay, you are mostly from computer science. Okay, fine. Now I'll pick up an example from computer science. Everybody reads Java, right? Read JavaScript also and doing the course because it is a part of their course. But reading Java is not actually enough. You have to build an application on that. Build an application, try to make it public. Let it be displayed on different platforms. I'll pick up another parallel example. Try to learn Python. Python is a kind of language which is actually competing with Java like nickel corners. It's very heavy in demand, giving salary more than 25 lakh rupees as an entry salary. Entry salary for a fresher. It's a surprising digit for a fresher to get. And honestly speaking, if you have a good amount of certification available to display on paper and you are appearing for a computer science job, there is a very much possibility if you have a Python in the domain, you may get selected. Not only Python, even the domain, even the modules which are being used by the Python. Try to come up, with a posting on a platform like Kaggle. Kaggle is a kind of platform. I don't know how many of you knows about Kaggle. Anybody knows about Kaggle? Okay, never mind, no problem. Actually, Kaggle ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पाइथन के कोड लगा के, कोड बना करके पब्लिश करते हैं। वो कोड कैसे होते हैं, वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। कॉम्पिटिशन लाइक सपोज एक स्टेंसिल है, उसमें कैसे डिटेक्ट करना है आपको इमेजेस देगा कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। It will get challenge thrown by a particular institution who wants somebody to make a code on machine learning so that the answer can be detected in early stages. What they will give you as an input is some images. Now images can be converted to RGB values, red, blue and green, right? RGB value, once it is being converted, that RGB value will have a scope of data available. That data can be manipulated and can be coded to highlight some area, even if there is a color coding difference. So many people have done it. And how you learn? Suppose if I am doing a posting on Kaggle, first enroll yourself on Kaggle. If you really want to pursue a career in Python, Python is the easiest language in the whole world. Being a mechanical engineer, I know it. So I personally get caught. It's much easier than JavaScript, but it's what do you say, industry favorite language. Why it is favorite? Because now it's an era of AI. Artificial intelligence has been in the market. It's been boomed. The day ChatGPT was launched, it becomes second to life for many people. And Python is one of the language which has been extensively used to code AI. तो कहने का मतलब ये है कि आप Kaggle में रोल करो और दूसरे लोगों के कोड को रीड करो. First learn Python, then start reading code from different people. That code when you read, you'll understand how the logic has been interpreted in the form of code. And finally, with pace of time, you'll have some small understanding of the subject. And later, as the time goes, try to code for the parallel fields which are there associated with your stake of interest. Suppose you are interested in certain problems. Like for an example, how to tell you? Suppose you have an Excel file, right? You want to pick up some entries which are below some limit, which are above some limit. Some number of people you want to select who are falling in the range of 60 to 70% of their class marks. Make a fake data set, try to work your code on that, and parallelly include it in Kaggle.
और मे बी अदर प्लेटफॉर्म अपलोड इट ऑन लिंक्डइन। मेरे कहने का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग योर ओन रिज्यूम और योर ओन सोशल मीडिया कंडक्ट थ्रू द नीड ऑफ द टाइम, टू द नीड ऑफ द टाइम। ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। देन व्हाट एल्स आई टेल यू? हाँ, भाई सुसाइड मत करना है, जॉब मिल जाएगी, बहुत लोग कर लेते हैं, मत करना प्लीज। कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना, बिलो द लाइन लो लाइन भी ये चीजें सही नहीं है। Some people got got to have some kind of depression because things are not working out and they started feeling it negative. Don't take it, just keep trying. Once, twice, 10 times, 15 times doesn't matter, but जब तुम ट्राई करते रहोगे तो चीजें काम करेंगी, एक्चुअली करेंगी, चीजें समझ में भी आएंगी। जो चीज मुश्किल लगती है छोटी चीजों में तोड़ो उसे, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, ट्राई टू लर्न इट एंड देन कम बैक, राइट? एंड वो क्या तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है? You can tell me what kind of problem you people are facing so that I can address it better. If anybody want to open up, you are most welcome. Please, anybody out of the audience want to open up? अगर कोई डाउट है आप लोगों को करियर को लेके या फिर कॉर्पोरेट यू वांट टू गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द कॉर्पोरेट, कोई भी डाउट है then you can तो Krishna. मैं अपने आप को वहां पीछे बैठा हुआ देख सकता हूँ। I was a backbencher, so the guy within the pink t-shirt. And I can imagine myself taking a nap there in that corner too. So देखो ये मतलब हेजिटेट नहीं करना। अगर आप कभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने डाउट्स के बारे में किसी से नहीं पूछोगे तो ऑनेस्टली जो मदद भी करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है आपकी मतलब करियर से रिगार्डिंग कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा। आई विल नॉट मेक यू अराउंड द सर्कल एंड लीव यू देयर। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे, जैसे ये बच्चे हेजिटेट कर रहे हैं तो आपका भी एक टाइम था जब आप उनकी जगह पे बैठे हुए थे, तो आप कैसे डील करते थे? कोई एक्सपर्ट इंडस्ट्री से आता था या किसी कुछ चीज को, क्या आप इतना एक्सपोर्ट थे अपने क्वेश्चंस को लेकर के, पूछने को लेकर के, क्यूरियोसिटी आपके अंदर इतनी रहती थी? तो आई थिंक अगर वो आप शेयर करेंगे इनके साथ तो ये जो अभी इनके दिमाग में सवाल जरूर होंगे, लेकिन एवरी टाइम व्हेनेवर वी डू दीज काइंड ऑफ सेशंस वी सी दैट वो सवाल जो है अंदर ही रह करके जो है इस गेट से बाहर निकल जाते हैं। वो सिचुएशन कैसे डील करें? देखो, एक बात मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देयर वाज वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड हरिकेश गुलाटी। हम दोनों साथ में बैठे थे, लास्ट दिन था कॉलेज का, और मुझे टर्न करके बोला, प्रवीण अपने को कोई जॉब देगा क्या? तो वो मैंने बोला नहीं देगा तो क्या होगा, सपोज नहीं देगा तो अपन क्या करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि जॉब नहीं ले सकते, काम तो ले सकते हैं। जाएंगे इंडस्ट्री वाले के पास, बोलेंगे यार काम करना है, खाली बैठ नहीं सकते तो काम दे दो, पैसा नहीं चाहिए। एक बार काम देगा फिर काम करेंगे, जब काम करेंगे हमसे कमाएगा वो, तो कल को वो लौट के भी आएगा। तो दिस इज द फिलॉसफी व्हिच आई वाज कैरिंग द डे आई वेंट आउट ऑफ दिस कॉलेज। कभी ये नहीं लगा कि जॉब चाहिए नहीं चाहिए। ऑनेस्टली आई एम अ पर्सन हु कीप्स माय एक्सपेक्टेशन टू द ग्राउंड। मैं पहले बुरे से बुरे के लिए तैयार होता हूँ, तब अच्छे के लिए ट्राई करता हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मैं तुमको बताता हूँ। The day I passed out from this college, I was not having expectation कि मेरे को कोई जॉब देगा, नहीं था। मुझे जॉब लेनी है, that was a clarity कि मुझे चाहिए, कैसे चाहिए मुझे पता नहीं था। That is something I was having, but that time there was no information available। चीजों को करना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आप दिल्ली में चले गए, बस स्टैंड से उतरे हो, आप देख रहे हो किस दिशा में जाऊँ, पता नहीं। बहुत सारे पता नहीं थे, जिनका जवाब नहीं था, बट इतना था कि कहीं गए तो काम करेंगे। मतलब अगर इंडस्ट्री में भी गए, दुकान पे गए, भाई दुकान जैसी होती है ना इंडस्ट्री, मेरे लिए सब तो दुकान जैसी थी। आज तो मेरे को पता है शॉप फ्लोर कोई चीज होती है और मतलब मैनेजरल पार्ट एक होता है, तो आई नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स आर देयर नाउ इन इंडस्ट्री, बट बाय देन इट वाज लाइक अ शॉप ओनली। फिर कोई आज काम कर रहे हैं, हमको काम करना है, क्योंकि जॉब तो शायद हम लोग नहीं क्वालिफाई करेंगे, बट काम करना है।
काम करेंगे तो कल को होगा। जैसे होता है ना, शुरू में न्यूज़पेपर फ्री में बांटते हैं, when you become habitual to reading it again, then somebody will tell you what you want, I want to buy it. तो बेचेंगे बट समय लगेगा यार, अरे कुछ समय लगेगा। देखो एक बात और बता रहा हूँ, ये सर ने बताया ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हम अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं। मे बी फॉर सम रीजन हम नहीं जानते हैं कि शायद अगर मैं अपना कमजोर पार्ट किसी को दिखाऊंगा तो कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं करेगा, या बाद में उसमें हंसेगा तो नहीं। तो कुछ दिन के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो पड़ रहा है, जब कॉलेज से निकल जाओगे कौन किस पे हंसा कौन किस पे नहीं हंसा फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज और पॉइंट आउट करता हूँ, एक्चुअली ये गोल्डन पीरियड है, मतलब दिस इज अ पीरियड इवन इफ आई विल सेव द लाइफ आई कैन नॉट रिवर्ट इट बैक। फर्क नहीं पड़ता तुम किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, बट फर्क पड़ता है तुम किसके साथ पढ़ रहे हो, कितना अच्छा तुम्हारा उनके साथ बॉन्डिंग है, कितना अच्छा तुम्हारा उसका रिलेशनशिप है, वो लाइफ टाइम रहेगा। तो पता है वो हरिकेश का फोन आया मेरे पास 7 साल के बाद, नो आई थिंक मेरी 4 इयर्स के बाद, एंड उसने पूछा यार रविंद्र मेरे को ना सिविल के लिए प्रिपेयर करना है और मुझे नहीं लगता कर पाऊंगा, तू बता मैं कर पाऊंगा क्या? तो मैंने बोला अगर तुझे लगता है तो तू पक्का कर पाएगा, पहले तू खुद तैयार हो जाए उसके बाद अप्लाई करेगा। तो उसे नहीं लगा कि मैं मजाक उड़ाऊंगा, समझ रहे? वो कंफर्ट था, तो वो कंफर्ट तुम्हारा भी किसी के साथ होगा, समझ रहे ना? तो हैव अ गुड बॉन्डिंग। जहां तक ओपन अप करने का सवाल है, पूछने का सवाल है, सवाल पूछोगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, ये ट्रुथ है लाइफ का। कुछ कोशिश करोगे नहीं तो हासिल भी नहीं होगा, बैकफायर कुछ नहीं आता, मतलब नहीं मिलता बैठे बैठे। स्टार्ट करके भगवान आके प्रकट होंगे, बोलेंगे ले लेना तुझे जो चाहिए मैं देता हूँ, नहीं होगा यार, नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि मतलब ये तरीका सही है, तो सही तो नहीं, चेंज करना चाहिए। मेरा भी कुछ हद तक था, इट्स नॉट दैट आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट, और कहीं ना कहीं जितना भी था, मतलब जितना भी एक्सट्रोवर्ट था मैं, उसकी वजह से कुछ बात दे दी गया। एक बिटर मोमेंट शेयर करता हूँ सर कॉलेज का। हमारे संतोष सर होते थे, हमको ना श्वेता पटेल पढ़ाते थे, एंड 3 या 4 बार हुआ ऐसा कि क्लास के दौरान कुछ समझ नहीं आया, वो पूछ लिया, पूरा लेक्चर चला गया, वो जवाब नहीं मिला, तो सर पढ़ा नहीं पाए। बाद में जब नेक्स्ट डे पूछा, उसको सर बोलते कि बेटा तू एक काम कर, थोड़ा रुक जा, पहले लेक्चर खत्म होने दे, तो उसके बाद पूछिए। तो कई बार पता है थोड़ी चीजें बिटर होती है। मैंने जवाब दिया था, अगर वो समझ में नहीं आया तो लेक्चर ही समझ में आया, बोला कोई बात नहीं, एक को अलग से पढ़ा दूंगा, बाकी को पढ़ाने देंगे। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तुम्हें खाली रहेगा, और कोई भी प्रोडक्ट से तुम्हें खाली रहेगा, पूछ सकते हैं, इट्स लाइक ओपन वे। या देखो आपका डिसिप्लिन क्या है? बीएससी अच्छा ओके, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जॉब आती है वहाँ पर। बीसीए करके आपने एमसीए कर सकते हो आप, और अगर उठा के देखोगे तो एक्चुअली कहते हैं कंप्यूटर डोमेन के अंदर वो लोग वैकेंसी फ्लोट करते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट वो लोग बीटेक डालते हैं या एमसीए डालते हैं, तो आप एमसीए करके अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैं बताऊँ आपको, बीसीए इज नॉट अ राइट व्हाट यू से maybe discipline for ISRO, because ISRO is like purely mechanical, सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, वो आता है बट बहुत लिमिटेड सा है। मतलब कहने का ये है कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर की कोडिंग होती है या मिशन मैनेजमेंट की कोडिंग होती है, बट उसका मतलब बहुत ज्यादा हिस्सा जो है, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा काम है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बट इट्स लाइक वंस यू डू इट for average single shot type of mission, it may be a reputational job. It is it may be like, it's not that big for BCA, but it's a great thing for a mechanical engineer, electronics, or for let's say avionics or aerospace propulsion. These 5 branches are like, ISRO is great. Why? Because huge amount of exposure is there. But for you, either you can do coding for mission control, or maybe for what do you say, onboard computer. Only 2 things. तो अगर
अगर तुम्हारा मतलब जैसे बोलते हैं ना ड्रीम है तो आई विल नॉट डिस्करेज यू कैन गो, बट देयर मे नॉट बी मच एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कोडिंग इन इसरो, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? बट वेरी इज दैट गुड आफ्टरनून। Grab a mic, please. Very difficult to do. Sir, he said after having a busy schedule, can you give the time to your family, friends, and other relatives? I am a killer. If I want to come to my family, I will come for any cost. 9 to 5 is my job. If I want to extend, I will extend. I will request them. Please, आज के लिए छोड़ दो या 10 दिन के लिए छोड़ दो. काम बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे करना है. अगर बोरिंग सिर्फ मैं कर सकता हूँ. We have been thrown a task to do payroll analysis. Nobody in the whole center was knowing how to do it. I have worked almost 32 hours down the line continuously. And next day also I did. Without sleeping continuously 24 next shift also. So कहने का मतलब ये कि अगर कुछ ऐसा है जो कोई और नहीं कर सकता और मेरे को बोला नहीं करने के लिए, मैं करता हूँ, और कुछ ऐसा है जो मेरे अलावा भी 4-5 लोग कर सकते हैं और मुझे बोला जाएगा तुम रुको यार 5 बजे के बाद नहीं करो, सॉरी जाने दो। इसको में बहुत ज्यादा लेग पुलिंग नहीं करते हैं टाइम को लेके, और टाइम होता है। देखो क्या है ना, हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मेरी जॉब का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए, कुछ पढ़ने को मिले, कुछ साइंटिफिक चीजें सीखने को मिले, और अपनी फैमिली को भी टाइम दी। Because at the end of the day, when you get retired, when you come back, if there is nobody in the house waiting for you, then there is no life, and it's pointless, right? तो बहुत टाइम होता है यार। Even I used to play badminton also. कुछ लोग कॉल करते हैं, वीकेंड फ्री होता है, कभी-कभी नहीं होता है, बुला लेते हैं वीकेंड पे, सैटरडे को आ जाओ, तो बहुत जरूरी होता है तो मैं जाता हूँ, नहीं होता है तो फिर अगेन सेम थिंग, सॉरी सर, गाड़ी किसी दिन नहीं आता, पार्टी में नहीं। Yeah, please. Anybody else? आपकी जर्नी के बारे में बताना था, आप कैसे इस वक्त पहुंचे? मैंने मतलब एक्चुअली क्या है 2009 में ज्वाइन किया अप्रैल में, 2008 में भी जून जुलाई तक मुझे नहीं पता था इसरो भी मुझे करना है। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑलमोस्ट 2 years, 1.5 years was over because I got passed on by July 2006. So 2008 जून जुलाई, okay, maybe 2 years, right? Now correct. मैंने ज्योग्राफी भी किया था अपना ऑप्शनल, मैं घर बैठा था, मेरे फादर बोलते 2 साल हो गए कुछ नहीं निकला, क्या करेगा, ऐसे कौन बैठता करके आगे बैठ गए। तो थोड़ा आर्गूमेंट हुआ, मुझे लगा यार सेकंड ऑप्शन मैकेनिकल लेते, मैकेनिकल वर्सेस सुसाइडल वर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मुश्किल था। तो लोगों ने बोला कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल और केमिस्ट्री these are very difficult subjects to work, तभी बात है। मैंने बोला नहीं, वक्त की डिमांड है, करना पड़ेगा। तो मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, 3 महीने 4 महीने लगे, मेरे खत्म हो गया। बहुत हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, कितना ही टाइम लगा खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो by 2008, I think if I'm not wrong, probably November, I was ready कि हम एग्जाम दे सकते हैं। तो प्लानिंग ये थी कि PSU वगैरह निकालते हैं, उसके बाद वहाँ जाके तैयारी करेंगे, तुम्हारा सिविल सर्विसेज उठाएंगे, पढ़ेंगे। इसरो का एग्जाम आया और रिटर्न क्लियर हो गया। तब तक नहीं पता था इसरो क्या करता है एक्चुअली, क्या नहीं करता है। बट आई वाज इन दिल्ली और बेगूसराय में मैं रहता था, बहुत छोटा सा मेरा रूम था। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत मजाक उड़ाया था, शुरू होने से पहले खत्म हो जा रहा है, क्या है ये, एक कमरे में 4 पाई एक टेबल लगा है, आदमी भी नहीं घुस सकता। मैं बोला मेरे लिए तो काफी है, मेरे को घुस के काम करना है, ऐसा है। तो वो जगह पे बैठा मैं और वो बताया रिटर्न कर गया। तो जैसे आपने बताया, कोई और बताया, तो इनपुट मिला। जैसे मैंने बताया ना, इट मैटर्स, तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स होना, तुम्हारा अच्छा सर्कल होना, एक्चुअली इट मैटर्स। एट सम पॉइंट किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, किसी के पास कोई, तब इंटरनेट नहीं होता है यार, तो इट वाज अ रेयर थिंग टू हैव इन एक्सेस। हाँ, मगर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना आपके पास नॉलेज अवेलेबल नहीं था करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आज है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, विल सी व्हाट इज दैट। तो 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, तो
आई गॉट माय इंटरेस्ट इंस्टिगेटेड। तो किसी ने बोला यार जैसे मैंने तुझे देखा, जैसे होता है ना, आप मुझे फीडबैक बताओ कि तेरा आउटलुक लगता है दिस वुड बी अ राइट चॉइस फॉर यू। मैंने पूछा क्यों, उसने एक्सप्लेन किया इट्स लाइक रिवर्स साइकिल, इनपुट कलेक्ट किए, लगा कि यार ये अच्छा ऑप्शन है, फिर साथ में डीआरडी निकला हुआ था, दैट वाज आल्सो इक्वली गुड, बट समहाउ उसका लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, वो उनको एक्सपेक्टेड था कि मैं दूंगा, क्योंकि मैंने अपना जो ब्रेक पीरियड था तो दिखाया था कि मैं पढ़ा रहा था किसी को, एंड इट वाज अ क्वेश्चन के बिल्कुल से लाइट नहीं पता तो कैसा दिखता है, तो मैंने बोला वो साथ में टूट जाएगा, रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा, तो डायग्राम बनाया तो एक लाइन निकाल के बाहर निकाल दी, 7 निकाल के पास एक निकाल के सोच, उसने कभी बोल दिया भाई तो 45 मिनट के बाद उसने बोल दिया आया तो डिसाइडेड 45 मिनट बैठा नहीं, पूरा 5 मिनट में भेज देता है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, अभी पेट्रोल ले लेता है, लंच हो गया, तो कहीं ना कहीं कहने का तो ये कि बहुत मुश्किल टाइम था। फिर उसके बाद जब रिटर्न निकला, इसका इंटरव्यू गया तो पॉजिटिव था, और बोला कि इफ यू ज्वाइन इफ यू पोस्टिंग इन साउथ इंडिया, मैंने बोला अभी तो चाहते भी लोग तो जाएंगे, जरूरत है, तो वो मतलब बन गई उसके बाद। कहने का ये कि धीरे धीरे लोगों ने एहसास दिलाया कि दिस कुड बी राइट डोमेन फॉर यू, तुम्हारा जो साइंटिफिक आउटलुक है उसके हिसाब से चीजें ठीक बैठनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्टडी करती है, कुछ स्टडी होता है, आपने टॉपिक पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, कोई भाई ने एक और पढ़ा दिया, उन्होंने एक और पढ़ा दिया, उन्होंने एक और पढ़ा दिया, तो बाद में पता लगा सब सेलेक्ट हो गए, एक बीएचएल चला गया, एक बिजनेस में आ गया, एक डीआरडी चला गया, एक डीएस निकाल गया, तो बाद में सब लोग को कुछ ना कुछ हो गया। ऐसे हुआ, देखो बहुत बार चीजें हम अकेला करने की कोशिश करते हैं, कई बार चीजें नहीं समझ में आती, बट जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कुछ कोई बता रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, बड़ा आप क्लासिकल सा बहुत बनता है। मैं ये बोलूँगा अभी हम लोग कर रहे हैं, बट अभी कुछ पहले की बात है, जो बीएसएनएल अलर्ट में उसने वो नंबर थे, तो काम बना मेरे को बता दिया, तो आई शेयर में नंबर एक बार नहीं कर, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा रिश्ता होता है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, देने को पता नहीं क्या होता है ना, तो पता नहीं क्या दे दो आप दूसरे को, इतना कुछ होता है आपको दे दे, तो यार वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से इसरो पहुंचे, फिर पता लगा ये तो जो असाइनमेंट मिला ये तो डोमेन का भी नहीं है, क्योंकि नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग किया गया था, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई नेवर रेड इन माय लाइफ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं जाता, वो एक छोटा सा टॉपिक होता था, उसमें पढ़ाया जाता था। अब ये एक्चुअली बेस्ट है, पहले के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मेरे टाइम में भी मैं नहीं हुआ, जानते हो क्यों है तो पहले वहाँ से पता नहीं यार ये मुसीबत खड़ी हुई कि तो डोमेन को मेरा जो काम नहीं किया किसी ने, कभी पढ़ा नहीं है, तो पता चीज़ों को पढ़ना शुरू किया बुक्स वगैरह से, एक अंडरस्टैंडिंग टाइप का। फिर इसमें मैं भेजा एक बीआरसी का लेवल 2 टेस्ट होता था वो करने के लिए, और बॉस बोलता कभी टेस्ट बहुत फाड़ू होता है और बहुत लोग फेल कर चुके हैं, जाने से पहले देख कर मैंने बोला चलो ठीक है यार देखेंगे, गए वहाँ यार वो टेस्ट क्लियर हो गया, वापस आया तो पहला सवाल जो बॉस का था सर्टिफिकेट मिला था भी वहाँ पे था, दिखा दे मैं दिखाया तो वो बोलता ओके गुड 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 गुड, तो उसको पता लगा लड़का कुछ कर सकता है, ऐसे ही मतलब चला गया। तो कहने का मतलब एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जैसे आप मेहनत कर रहे हो, कई चीजें कई बार किस्मत की किरण के लिए मोड़ देती है, मतलब आप वहाँ पहुँच जाते हो शायद जहाँ आपको पहुँचना होता है, तो वैसे ही मतलब पहुँच गए। बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लोग बहुत डिफिकल्ट है पता करना है, पहुँचना क्या करना है क्या नहीं करना है सब डिसाइड करना है। और सर आपके जीवन का आदर्श कौन थे जिनको आदर्श नाम के आप इस अचीवमेंट को अचीव कर रहे हैं? देखो आदर्श नहीं, बहुत लोगों ने एक्चुअली क्या होता है आदर्श वगैरह बनते तक निकला है तो पता नहीं, बल्कि बहुत लोगों से सीखते हो, मतलब क्या होता है हम मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये आइडल्स ये होता है सबसे नीचे या सबसे ऊपर, दस टाइम से बात करोगे जरूर होगा आदर्श, एक गरीब आदमी से बात करोगे वो कामयाब होगा उसमें जरूर होगा आदर्श। हमारे यहाँ डेली का संघर्ष बहुत होता है, आज 5 रुपए कम है या तेल लगाने के लिए पैसे तो रूम से पैदल चल के आना है, आदर्श आदमी जब सोचेगा लगे तो बिल्कुल यहाँ है या वो यहाँ है, तो ऑनेस्टली सीखा बहुत, सीखा कॉलेज से सीखा, हमारे टीचर से बहुत सीखा, हमारे स्कूल से भी बहुत सीखा, अपने दोस्तों से भी बहुत सीखा। सो यू कैन कॉल मी लाइक अ लीच, आई सक नॉलेज फ्रॉम मेनी पीपल, a leech is such knowledge, right? Not blood only, but you can call me that. Yes, but यार idealistic नहीं था, कभी भी नहीं। I was not idealistic ever. I was a very lazy guy. तो
बस ठीक है, मतलब जैसे होगा ना, मतलब इक्विलिब्रियम वो रहता था, तो आज है इसलिए धक्का मारा वहां चला गया, वहां इक्विलिब्रियम है, वहां तक धक्का मारा यहाँ इक्विलिब्रियम है तो आज पता नहीं थोड़ा स्टेबल तो रहना नहीं होगा शायद, इसीलिए इसको निकाल रहा नहीं तो छोड़ के कहीं हो जाता है, कहीं हो जाता और बहुत सारी चल रहा दर्द तो नहीं है। आई वाज सेटिस्फाइड कि तो क्या वो अच्छा है, क्या कोई और नहीं कर पाता, तो वो खुशी है हमें। तो आदर्श इतना आइडियल नहीं हुआ। या प्लीज, दैट वाज माय पोजीशन एक्चुअली, जनरली मैं वही बैठता था, ठीक है राइट, इतना पीछे होता था मैं कि आराम से चिल कर सकूं। या प्लीज, गुड आफ्टरनून। You are going to a fast away Chandrayaan program, and the day when you come to know that Chandrayaan is successfully landed. Can you share your views? यार जब वो लैंड होना था तो मैं जल्दी कर आया, वो टीवी पे देखा मेरे साथ के दोस्त में इस ट्रैक चले गए, वहां पर वहां दिखाया था वहां पर स्क्रीन पे मेरी बैठ में बहुत सारा मुझे वहां चला जाते हैं, यहाँ क्यों आ गए, बिकॉज़ शी लाइक्स मी, तो उसको लगा कि वहां बैठना बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ बैठा था जिनका काम क्या है, और मेरे को लगा फैमिली के साथ देखूंगा यार, उससे अच्छा क्या होगा बताओ, अगर गलत भी हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मैं मेरी वाइफ बैठे हुए थे, सीट पे चल रहा था, और जैसे सॉफ्ट लैंडिंग वाला पार्ट आया ना, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए कि सीएससीटी को काम करना था, और सीएससीटी वाज क्वालिफाइड बाय कंट्रोलेबल फ्लो कंट्रोल वाला करके होता है सीएससीटी, और वो मैंने क्वालिफाई किया था, और वो काम नहीं करता तो मेरी लग गई थी, सीरियसली लग गई थी, क्योंकि साइंस लेवल पे पेपर पे तो जब बैठा हुआ मैं लगा यार भगवान सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए कैसे हो जाए बोले तो यार वो एक पार्ट था जिसमें वाकई में दूसरों को आया, जहाँ पे सवाल है ना, मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ करने का, ये करने का, कई बार चीजें पता है जब चैलेंजिंग होती है तब इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना सेमी का होता है, वहाँ चीजें अड़ी हुई थी, मतलब मास रेपुटेशन हमारे साइड से किसी को तो ग्रेव एनालिसिस करना ही और करेंगे तो मेरे जो सीनियर्स हैं बोला करेंगे नहीं, वो हाई लेवल कमेटी है, बताना है करना है कि नहीं करना है, अगर करना है, पर जब वो चीजें नहीं हो पा रही, टाइम लग रहा था, 26 घंटे आप बैठ चुके हो, आउटपुट नहीं आ रहा है, आपको खुद अपने डाटा पे डाउट है, जो डाटा आप पब्लिश कर रहे हो, कुछ 1000-15,000 वैल्यूज हैं अलग अलग डोमेन पे, आप उनको प्लॉट कर रहे हो में और देख रहे हो, तो फैसिनेटिंग था एक्चुअली। मुश्किल प्रॉब्लम में हमेशा फैसिनेटिंग होती है, क्योंकि उसको करने की जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, वो आसान प्रॉब्लम से कभी नहीं आता। यहाँ से निकलते हुए दोस्त ने बोला था नहीं छोटी कंपनी को कोई जॉब देगा क्या, तो पहली बार लगा फोन लगा फिर रुक गया, लगा यार कहीं पुराना बने इसको ना लगे जॉब कर रहा है, तो नहीं फोन किया। तो कई बार क्या बोलूँ, मतलब कई बार आप नहीं करते हो जो करना चाहते हो, क्योंकि चीजें लगता है कोई घर अच्छा बना जाए, बहुत अच्छा रिश्ता है, खराब ना हो जाए, बट ठीक है, आई थिंक दिस इज लाइफ यार, दिस इज लाइफ। बट अगर आपको छोटा बनाना है, चाहे कोई आईआईटी में है या कोई एनआईटी में है, एक बार वो एक हैवी सैलरी तो कैंपस में ही थ्रो कर दी जाती है, उसके बाद बंदा चिल मारना है पीछे बैठ के, वो मिसिंग वो इतनी बड़ी चीज नहीं है यार, इसलिए तुम डिसहार्टेड हो, कम ऑन, मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो वो परफेक्ट होगी, इतनी बड़ी बात है। 10 दिन रिज्यूम जाएगा ना, अच्छे सर्टिफिकेशन के साथ जाएगा, चाहे वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर है या आईटी है, अगर आपका रिज्यूम बढ़िया सर्टिफिकेशन के साथ किसी भी बंदे के पास पहुंचता है जो शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, मैं डेफिनेट बोलता हूँ 3 बंदे चेक करते थे, 2 आपको अलाउ करेंगे, अब वो 2 में से आप जरूर खोलोगे, क्योंकि आपको पता है आपको कुछ अचीव करना है, कुछ मतलब करना है लाइफ में, क्योंकि एक्टिंग नहीं, ये कुछ ऐसा है आपको पता है आपके बाप के पास बहुत पैसा होगा तो आदमी मेहनत नहीं करता, थोड़ी सी दिक्कत आते होते हैं यार छोड़ के इतना पेन कौन लेगा, अपने बाप का बिजनेस है वही करेंगे, और जिसके बाप करना होगा वो उसको पता होता है बेटा तुम तो सर्वाइव नहीं कर सकता, मरना सिर्फ को है नहीं, जिएगा कैसे, कर भाई किसा है, तो तुम कर लोगे यार, बट करने से पहले तुम्हें विश्वास होगा कि तुम कर लोगे तब तुम करो, अगर तुम्हें डाउट करना अपने ऊपर नहीं कर पाओगे यार, अगर तुम्हें लगता है तुम कर लोगे ना तो तुम पक्का कर लो,
आई स्टिल रिमेंबर यहाँ से निकलने से पहले थर्ड ईयर में सेवंथ सेमेस्टर में सीडीएस एग्जाम निकल गया तेरे भाई का, और बापू ने बोला भाई ज्वाइन कर। मैंने बोला नहीं कुछ टेक्निकल करना है। मेरे फादर ने बोला कुछ नहीं करेगा तो भाई फिर कर ले, मिल रहा है ले ले, पक्की पकाई क्यों इतना मतलब एडमेंट होकर बैठा है कि कुछ और कर लेंगे कुछ और कर लेंगे, मिलता रहता है कुछ और क्यों करने लिए, मिल रहा है ले लेगा। मैंने बोला नहीं कुछ टेक्निकल करना है। तो मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया, उससे मैंने इंडिया निकल गया था, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले नहीं गया। भाई मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको ऐसे मत लेना कि कुछ अलग था बंदे में, नहीं था यार। मैं अच्छा था क्योंकि वही जैसे बताया ना रिपीटेड स्ट्रैटेजी, आप पढ़ चुके हो 7 रिवाइज कर चुके हो, 8 पढ़ चुके हो रिवाइज कर चुके हो, डिग्री कर चुके हो, पेपर हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का, बाद में रिवीजन मार दिया जो मुश्किल सब्जेक्ट था, बस ऐसे ही मार दिया, ऐसे ही मार दिया। ऐसा नहीं किसी ने बोला, खाली बैठा आदमी कुछ तो करेगा, कर दिया। तो ऐसे ही 7th सेमेस्टर आया, मुश्किल सब्जेक्ट था, रिवीजन मार दिया, वहां से बहुत हेल्प मिली यार, बहुत हेल्प मिली। जब वो दोबारा पढ़ना था, रिवाइज करना था, 3 महीने में मैकेनिकल कंप्लीट करना और हेलो जॉब, बट हुआ चल भी हुआ। तो कहने का तो ये है कि चीजें होती हैं, अगर आप करना चाहते हो तो होती है। पहले आप विश्वास करो, फिर दूसरे भी विश्वास करेंगे, एक दिन बाकी घर वाले भी विश्वास करेंगे, उसके बाद दायरा बढ़ेगा, सब विश्वास करेंगे। आप विश्वास करो, आप कुछ कर सकते हो, होगा, पक्का होगा।